हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन के दो फीचर्स होते हैं। फर्स्ट होता है even when income y is zero, there is some minimum consumption which is called as autonomous consumption, which is always positive. मीन्स जब हमारा इनकम का लेवल जीरो होता है तो भी हमें कंजम्पशन का मिनिमम लेवल means there is some minimum level of consumption which is needed for the survival of the human being. That's why there is some level of minimum consumption even when the level of income is zero. Such level of consumption is known as autonomous consumption, and it is represented by C bar. This is the symbol of autonomous consumption. Now, when the income rises or increases, because consumption is positively related with the level of income, so with the rising level of income, consumption also increases. हमारी इनकम बढ़ेगी इकोनॉमी में तो कंजम्पशन लेवल भी इकोनॉमी में इंक्रीज होगा, पर हमें ये बात पता है कि जो रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन होगा वो लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम होगा। मींस इनकम इंक्रीजेस एट अ फास्टर रेट एंड इन कॉन्ट्रास्ट कंजम्पशन increases with the rising level of income but at a lesser rate. Means ki after a certain level of income is reached, the level of consumption will be lesser than the level of income, or the level of income would be higher than the level of consumption, and that is known as change in consumption divided by change in income is known as MPC. And MPC is represented by symbol P in the equation. So MPC states that with the change in level of income, the level of consumption also rises. And this increased level of consumption with the increased level of income is known as induced consumption and can be estimated by multiplying MPC by income. Means अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को लिखता हूं और मुझे कंजम्पशन फंक्शन जानना है तो कंजम्पशन फंक्शन जानने के लिए C मतलब level of consumption, C is autonomous consumption, and B is marginal propensity to consume multiplied with level of income will give you the total level of consumption, or consumption equation will be C bar plus B into my MPC. Autonomous consumption, which is C bar, that has nothing to do with the income because it is the minimum level of consumption. Whereas later on consumption, which is increased with the increase in level of income, which is induced consumption. Induced consumption expenditure is the level of consumption expenditure which changes with the level of income. तो अगर मैं consumption function को equation के form में represent करूंगा तो that will be
C bar autonomous consumption plus B MPC multiplied by level of income or corresponding level of income. For example, अब ये जो गिवन इक्वेशन है इसे हम लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन से कंजम्पशन डिटरमिन करेंगे तो वो इक्वेशन हमें स्ट्रेट लाइन देगी which will start from autonomous consumption level in and C bar equal to intercept and B is the slope of consumption function. Means अगर आप इस डायग्राम को देख पाए तो ये जो हमने यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट करा है, सी कर्व को जो हमने बनाया है वो हमने इंटरसेप्ट ऑन वाई लेकर के बनाया है, और ये जो आगे की कंजम्पशन है, ये जो सी पॉइंट है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इसके बाद का ये जो कंजम्पशन कर्व है, ये वाला कंजम्पशन कर्व इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। जैसे जैसे हमारा इनकम का लेवल इंक्रीज होता है, अकॉर्डिंगली विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन का लेवल भी इंक्रीज होता है, बट एट अ लेसर रेट देन द राइज इन द लेवल ऑफ इनकम। तो ये कंजम्पशन कर्व स्ट्रेट लाइन होता है बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई डी MPC with the level of income, that will give us the same value, means ki that will when it will be drawn, it will be a straight line consumption curve sloping upward starting from point of autonomous consumption. ये MPC की वैल्यू आप देखेंगे कांस्टेंट आ रही थी 0.9 0.9 0.9 0.9, और MPC से अगर हमने कंजम्पशन लेवल एसर्टेन करना होता है तो हम MPC को मल्टीप्लाई करते हैं लेवल ऑफ इनकम से। अगर आप देखें यहाँ लेवल ऑफ इनकम 100 है, ये लेवल ऑफ इनकम 100 है और यहाँ पर MPC की वैल्यू 0.90 है, तो 100 multiplied by 0.90 will give you 90, which is the level of consumption. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका चेंज इन कंजम्पशन लेवल है ड्यू टू चेंज इन इनकम वो आपका 90 है। एंड देन जब अगेन इनकम का लेवल 100 से चेंज हुआ तो MPC की वैल्यू कितनी है आपकी 0.9, तो ये अगेन 90 आएगा। तो चेंज इन लेवल ऑफ कंजम्पशन is constant at all levels of income, which shows that if it is drawn on the curve, it will be having a straight line consumption curve starting from point C. तो ये इसका एक important feature होता है। तो जो हमारी consumption equation होती है वो linear consumption function होता है, because जब हम consumption equation से level of consumption ascertain करेंगे तो that will give us the straight line sloping upward, or higher the level of MPC, more is the slope of linear consumption function. जितना ज्यादा MPC का लेवल ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये स्लोप अपवर्ड जाएगा। मींस अगर ये स्लोप इतना है, अगर MPC की वैल्यू बढ़ जाए तो ये स्लोप ऊपर की तरफ हो जाएगा, अगर और बढ़ जाए तो ये ऊपर की तरफ होगा, यानी ये आपका स्लोप जो होता है वो अपवर्ड रहता है। So that will be more linear slope. Higher the value be, more is the slope of linear consumption function.
अब मान लीजिए कि आपको कंजम्पशन इक्वेशन से कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना है, और अगर हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 करोड़ की है और हमारा एमपीसी 0.8 है और लेवल ऑफ इनकम 100 करोड़ है, तो जैसे मैंने अभी ऊपर करके दिखाया, 100 करोड़ इज द लेवल ऑफ इनकम, 0.80 इज द एमपीसी, तो 80 करोड़ तो आपकी इंड्यूस्ड कंजम्पशन हो गई और 40 करोड़ आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो टोटल लेवल ऑफ कंजम्पशन आपका 120 करोड़ हो जाएगा। तो हमारा लेवल ऑफ कंजम्पशन हमें मिल गया 120 करोड़। ऐसा एक नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपका। यहां तक भावे कुछ पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। सर आ गया समझ। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। जैसे कंजम्पशन फंक्शन होता है वैसे सेविंग फंक्शन भी होता है। अब सेविंग हमारी इनकम माइनस कंजम्पशन की इक्वल होती है, और कंजम्पशन फंक्शन जो है वो आपका C इक्वल्स टू C बार प्लस B इंटू वाई होता है। अगर हम C की वैल्यू को पुट करें सेकंड इक्वेशन से 1 में, तो 1 में फर्स्ट इक्वेशन में, इस इक्वेशन के अंदर ये सेविंग है, ये y है, और कंजम्पशन फंक्शन है C बार इक्वल्स टू B प्लस y। तो हमने C की जगह कंजम्पशन फंक्शन डाल दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी सेविंग इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन 1 माइनस बी, 1 माइनस बी मतलब एमपीसी, तो 1 माइनस एमपीसी जो होगा, अब हमने पढ़ा था एमपीसी और एमपीएस दोनों इक्वल टू 1 होते हैं। तो अगर आप 1 में से बी, अगर आप 1 वैल्यू है दोनों की और बी माइनस करेंगे, बी इनमें से है एमपीसी, तो 1 माइनस एमपीसी करेंगे तो आपको मिल जाएगा एमपीएस, एंड एमपीएस को जब मल्टीप्लाई करेंगे इनकम से तो हमें लेवल ऑफ सेविंग पता लग जाएगी, तो इसलिए सेविंग कर्व है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन आपकी नेगेटिव सेविंग होती है जब इनकम का लेवल 0 होता है, और बाकी जो सेविंग हो रही है लेवल ऑफ इनकम चेंज होने से वो 1 माइनस बी इंटू वाई से आ जाएगी। अगर ये सेविंग फंक्शन समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर आगे समझ। अब आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 करोड़ है नेगेटिव, 1 माइनस बी, आपका बी एमपीसी था जो हमने 0.80 लिया था ऊपर, तो 1 माइनस 0.80 तो एमपीएस 20 आ जाएगा। अब 100 इंटू 0.20 करेंगे तो 20 करोड़ की आपकी इंड्यूस सेविंग आ जाएगी, और ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से डिस सेविंग्स 40 है, तो -40 प्लस 40 -20 रह जाएगी आपकी सेविंग एट विच लेवल ऑफ इनकम, एट 100 करोड़ लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ सेविंग वुड बी -20। और हम देख सकते हैं कि हमने -20 भी सेविंग ली भी हुई थी जब हमने पीछे कर्व किए थे ये वाले, तो आप देखो आपकी सेविंग जो थी यहाँ पर -20 थी इस जगह पर। कुछ पूछना चाहे दोनों इक्वेशन पर तो इक्वेशन की न्यूमेरिकल आते हैं आपके हमेशा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, पहले भाव्य अर्थ ध्यान से सुनेंगे। हम पहले y एक्सेस और x एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा।
फिर देन इसके बाद हम लोग इनकम का ड्रॉ करेंगे और इनकम कर्व को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो C पॉइंट से कर्व शुरू हो रहा है, ये आपका ऑटोनोमस, ये आपका कंजम्पशन कर्व है। अब जहां पर y और c एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 1 होता है, बिकॉज नथिंग इज सेव्ड। और जब हम इस की पॉइंट से, क्योंकि यहां पर आपकी सेविंग की वैल्यू क्या है, एपी इक्वल्स टू 1 का मतलब है आपकी जो एपीएस है, सेविंग है, वो यहाँ पर 0 है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग 0 होती है। आप यहां से जब एक परपेंडिकुलर डालेंगे नीचे वाले एक्सेस के ऊपर, इस जगह पर, और ये आपने पहले यहाँ पर एक सेकंड एक्सेस में ड्रॉ करके रखना है। यहाँ लिखना है आपको y और यहाँ लिखना है आपको x, यहाँ लिखनी है सेविंग, यहाँ लिखनी है इनकम। अब जहां ये परपेंडिकुलर फॉल करेगा, वहां पर सेविंग 0 होगी और एपीएस भी क्या होगा, 0, बिकॉज एपीएस इक्वल्स टू 1 होगा। तो जहां ये परपेंडिकुलर फॉल करेगा, उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे हम लोग पॉइंट बी से। और फिर हम नेगेटिव एक्सेस से सेविंग कर्व इस पॉइंट से क्रॉस करते हुए लेकर के जाएंगे, क्योंकि सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव एक्सेस से शुरू होता है, जो -40 की डिस सेविंग्स को या ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर डिस सेविंग्स जो होती हैं वो ऑटोनोमस कंजम्पशन की इक्वल होती हैं। तो जहां ये पॉइंट आर, जहां ये पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर बनेगा, उस पॉइंट से इस कर्व को आप ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए लेके जाएंगे, तो ये सेविंग कर्व डिराइव हो जाएगा। दोबारा पूछना है, दोबारा पूछ लीजिए। सर यहाँ पे एपीएस 0 क्यों है? क्योंकि आपने ब्रेक इवन पॉइंट है ना आपका, ब्रेक इवन पॉइंट में अगर आपकी ब्रेक इवन पॉइंट होता है जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाते हैं। देखें आप यहाँ पर आपकी इनकम का लेवल 200 करोड़ है, कंजम्पशन भी 200 करोड़ है, सेविंग 0 हो गई। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग बाय वाई। भाई तो जब आपका सेविंग बाय वाई 0 है, तो एपीएस भी क्या आएगा, 0 आएगा। दोबारा बोलूं, नो सर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। बात को ध्यान से सुनेंगे। जब हम इन्वेस्टमेंट टर्म यूज करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। यानी हम अपनी इकोनॉमी में एक साल के अंदर जितनी भी नई कैपिटल एसेट यूज करते हैं, डालते हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे एक साल में बनने वाली नई मशीन, नई बिल्डिंग, नए इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल का स्टॉक, ये सारे हमारे कैपिटल फॉर्मेशन या न्यू कैपिटल एसेट्स होती है। इससे इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में और एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के अनुसार की जाती है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के अनुसार की जाती है, उसको हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये डायरेक्टली इनकम के लेवल को
या इनकम के लेवल से इन्फ्लुएंस होती है। इनकम का लेवल इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इनकम का लेवल कम होता है तो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होती है। तो इसलिए इसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इसको हमने ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमने वाई एक्स एक्सेस के ऊपर इनकम को शो करा है और वाई एक्सेस पे हमने इन्वेस्टमेंट को शो करा है। अब जैसे आप देखें हमारा इनकम का लेवल ओ वाई है तो हमारा इन्वेस्टमेंट ओ एम है। तो हमने ये पॉइंट मार्क कर लिया यहां पर। और देन जब हमारा इनकम का लेवल ओ वाई से इंक्रीज होकर के ओ वाई 1 हुआ तो हमारा इन्वेस्टमेंट का लेवल ओ एम से बढ़ करके ओ एम 1 हो गया। इसका मतलब जब इनकम वाई वाई 1 से राइज करी है, इंक्रीज हुई है, देन हमारा इन्वेस्टमेंट का लेवल एम एम 1 से इंक्रीज हो गया। यानी इनकम बढ़ेगी तो ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, यानी प्रॉफिट्स को या इनकम को देखते हुए जो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दोबारा पूछना है, दोबारा पूछ सकते हैं। नो सर। इसके बाद नेक्स्ट होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसे इन्वेस्टमेंट जो इनकम के लेवल से इंफ्लुएंस नहीं होती है। अगर इनकम का लेवल ओ वाई 1 है तो ये इन्वेस्टमेंट तब भी इस आई लेवल पर है। इनकम का लेवल इंक्रीज होकर ओ वाई से ओ वाई 1 हो गया तब भी आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल उतना ही है। तो जब आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल यहाँ पर ए था, सपोज ऐसा कर रहे हैं, एट ओ वाई लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट वाज आई या ए पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रही है। इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ करके मतलब इन्वेस्टमेंट एट पॉइंट बी आ गई, पर इन्वेस्टमेंट का लेवल सेम है। यानी इनकम तो राइज हो रही है ओ वाई से ओ वाई 1, लेकिन बट इन्वेस्टमेंट राइज नहीं हो रही है, तो इसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व का नाम देंगे। दिस कॉल्ड एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। Autonomous investment refers to the investment which is not affected by changes in the level of income and is not induced solely by profit motive. Means कि ऐसा investment जो कि change in level of income से affect नहीं होता है and is not induced solely by profit motive, और ये केवल profit motive से induced नहीं होता है। That's what is called as income inelastic. Income inelastic क्या होता है? Income बढ़े या घटे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये इनइलास्टिक रहता है, नो चेंज रहता है इसके अंदर। दैट्स व्हाई दिस कर्व इज कॉल्ड एज इनकम इनइलास्टिक एंड दिस इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिक। दोबारा बोलो बेटा। नो सर। ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये जनरली गवर्नमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज के ऊपर, जबकि गवर्नमेंट को पता होता है कि इस इन्वेस्टमेंट से ये इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में करनी जरूरी है, चाहे इकोनॉमी का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो भी ये होगी, अगर लिटिल बिट डिक्रीज हो रहा है इनकम का लेवल तो भी ये होगी। यानी ये इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी अगर इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमारे को डेवलप करनी है, जनरेट करनी है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितनी होगी ये इनकम तो डिटरमिन नहीं करती है, लेकिन हमारी इकोनॉमी का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं ये जरूर तय करती हैं कि हमारी इनकम का लेवल, हमारी इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या होना चाहिए। यानी देयर मस्ट बी सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट
which is influenced by social, economic and political conditions of the country, but not by the profit or the income motive. अब अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट, आउटडेटेड हो जाती है, नए रिसोर्स डिस्कवर हो जाते हैं या ग्रोथ इन पॉपुलेशन हो जाती है, तो इन सभी कारणों से हमें इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे इनकम का लेवल बढ़े या ना बढ़े। तो अगर वो पूछता है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द चेंज इन टेक्नोलॉजी, डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो इट इज ट्रू, तो आप बोलेंगे यस, बिकॉज इन सभी फैक्टर्स को हमें, इन सभी फैक्टर्स के लिए हमारे लिए इनकम का इंक्रीज किया जाना, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जाना जरूरी है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो नई टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, चाहे इनकम बढ़े या ना बढ़े। नए रिसोर्सेज अगर डिस्कवर होंगे तो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और अगर ग्रोथ मतलब न्यू रिसोर्सेज चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ इन पॉपुलेशन हो रही है तो भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दीज आर द डिटरमिनिंग और द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। कुछ पूछना है तो पूछ लेंगे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट पॉइंट है, ये प्रॉफिट मोटिव से ड्रिवन होती है, ये सोशल वेलफेयर से ड्रिवन होती है, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। ये इनकम इलास्टिक होती है, इनकम बढ़ेगी तो ये इंक्रीज होगी। ये इनकम इनइलास्टिक होती है, अनअफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम होती है। ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ये हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है। ये इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करता है प्रॉफिट मोटिव से, ये गवर्नमेंट सेक्टर करता है irrespective of profit motive but due to some other reasons, and the level of autonomous investment will also dependent on the social, economic and political conditions of the country. कुछ पूछना है? No, sir. नेक्स्ट है, ये जो डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये अगर सिलेबस में होगा तो मैं आपको कराऊंगा। इन माय ओपिनियन ये डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सिलेबस में नहीं है। ठीक है भाव्यार, ठीक है सर। एक बार अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्स एंटे एंड एक्सपोज्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। पहले हम बात करते हैं एक्स एंटे सेविंग की। देखिए, जो एक्स एंटे होता है, एक्स एंटे का मतलब होता है डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड, और एक्सपोज्ड का मतलब होता है एक्चुअल, रियलाइज्ड। तो एक्स एंटे सेविंग क्या होती है? सेविंग विच हाउसहोल्ड्स और सेवर्स प्लान टू सेव, यानी that level of saving which the household has planned to save at different level of income in the economy.
यानी अगर हम एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल बनाए तो उसके अंदर जो सेविंग है वो आपकी एक्स एंटे सेविंग है, डिजायर्ड लेवल ऑफ सेविंग बाय द हाउसहोल्ड्स ऑफ द कंट्री है। जबकि एक्स एंटे सेविंग जो है वो आपकी प्लान सेविंग होती है इकोनॉमी की, और जबकि एक्सपोस्ट सेविंग जो होती है वो एक्चुअल या रियलाइज्ड सेविंग ऑफ द इकोनॉमी होती है ड्यूरिंग अ ईयर। इसका मतलब है जो सेविंग आपने प्लान करी थी और जो सेविंग आपने अनप्लान करी थी, यदि इनको जोड़ दिया जाए तो आपकी एक्चुअल सेविंग्स होती हैं। दोबारा बोलो बेटा। नो सर। सेम ऐसे ही एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द or planned level of investment by the firms in an economy during an accounting year. Amount of investment which firms plans to invest, not the actual level of investment, but the planned level of investment at different level of income in the economy is known as ex ante investment. Whereas ex post investment is the realized or actual level of investment in the economy. Ex post investment refers to the realized or actual investment in the economy. कुछ पूछना है पूछ लीजिए। सर एक बार एक्सपोज में दोबारा बता दो। एक्सपोस्ट मतलब एक्चुअल, एक्स एंटे मतलब जो हम प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जो एक्चुअल में हमने करी है। ओके सर। इसके बाद जब हम अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पढ़ेंगे अभी आगे, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में जब होती है तो इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी तब मानी जाती है व्हेन, ये हमारा अगला चैप्टर है, व्हेन सेविंग बिकम्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो जाएगी तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो सेविंग होती है जो हम एडी शेड्यूल और एएस शेड्यूल से डिराइव करते हैं, ये जो एडी और एएस से हमने डेरिवेशन करी होगी, मतलब जो भी हमने वहां डिजायर्ड लेवल ऑफ सेविंग दिखाया है या डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाया है उनका उन शेड्यूल्स के अंदर, वो हमारे एक्चुअल नहीं होते, वो हमारे एक्स एंटे होते हैं। यानी एक्सपोज तो रियलाइज्ड है, लेकिन जब हम इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम को प्लान करते हैं तो केवल वो प्लान मतलब equilibrium level of economy is determined or predetermined by a point where planned saving becomes equal to planned investment, or simply saving becomes equals to investment, that is
एक सेकंड काव्या। अब इक्विलिब्रियम लेवल वहां होगा जहां एक्स एंटे सेविंग एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो जाएगी। दोबारा बोलूं बेटा? नो सर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी, फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का। बात को ध्यान से सुनेंगे, ये ज्यादा एलोबरेट करने के लिए नहीं आता, 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, बेसिकली हम हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं, एक हमारी इकोनॉमी में ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, थोड़ा सा बात को समझेंगे। हु आर विलिंग का मतलब होता है जो काम करने की इच्छा रखते हैं, एंड एबल टू वर्क है। अब एबल टू वर्क क्या बताता है? मान लीजिए कि एक पर्सन बहुत ओल्ड एजेड है, वो तो नौकरी करे, वो तो काम कर ही नहीं सकता। एबल का मतलब है वो योग्य होना चाहिए, यानी अगर वो बुजुर्ग है, अपाहिज है, किसी कारण से काम नहीं कर सकता है, तो फिर वो पर्सन एबल नहीं, डिसेबल माना जाता है। तो वो कह रहा है जो लोग काम करने के लिए विलिंग है और काम करने के लिए एबल हैं, काम करने की लिए एबिलिटी रखते हैं, और एग्जिस्टिंग वेज रेट जो इकोनॉमी में चल रहा है, उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे अगर उनको काम मिलता है बिना कोई अनड्यू डिफिकल्टी के, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। यानी जो लोग काम करने की इच्छुक हैं, योग्य हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे और काम कर और उनको काम मिल रहा है, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। अनड्यू डिफिकल्टी का मतलब होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत परेशानी उठा करके नौकरी ढूंढनी पड़ रही है और नौकरी ही नहीं मिल रही है, बहुत धक्के खाने के बाद नौकरी मिल रही है, तो दैट इज नॉट considered as normal, that is considered as undue difficulty। तो जब आपको जॉब विदाउट एनी डिफिकल्टी मिले, अनड्यू डिफिकल्टी, मिनिमम एफर्ट तो करने पड़ेंगे पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स ना करने पड़े, तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट में होंगे। सर आगे समझिए मेरा। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब आप नौकरी छोड़ते हैं और किसी दूसरी नौकरी में चले जाते हैं, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, आपने जॉब छोड़ी, आप दूसरी नौकरी में चले गए, या लेबर मार्केट इम्परफेक्शन है, जैसे आपको मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस तरह की जॉब मार्केट में है और आप खाली बैठे हुए हैं, या लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स है, जैसे वर्कर एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी शहर नहीं जाना चाहता, वो कहता है मैं एक ही शहर में रह करके नौकरी ढूंढूंगा, मैं जगह नहीं बदलूंगा, और उसको कुछ दिनों के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है। या आप रोजगार करने के योग्य हैं
पर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब के बारे में नहीं पता और फिलहाल आप जॉबलेस हैं, या किसी फैक्ट्री के अंदर प्लांट ब्रेक डाउन हो गया है और 8 या 10 दिन उसको रिपेयर होने में लगने हैं और आप अब रोजगार में नहीं है, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि कुछ समय बाद रिमूव हो जाएगी। और नेक्स्ट होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमी के अंदर आईटी प्रोफेशनल्स चाहिए। आईटी प्रोफेशनल्स का मतलब है जो कंप्यूटर्स के प्रोफेशनल है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनमें ये लोग शामिल नहीं है, यानी लैक ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जबकि मार्केट में आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड ज्यादा है, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि चलो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो पॉसिबल है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन कम से कम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर। यानी तभी तो हमारी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, स्किल डेवलपमेंट करती है। जब इकोनॉमी में स्किल डेवलपमेंट होगी और मार्केट की नीड को पूरा किया जा सकेगा, जिस टाइप की स्पेसिफिक टाइप की जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर हमारे लोग भी स्किल्ड होंगे उसी के लिए, तो इस तरह की स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आएगी ही नहीं। दोबारा पूछने, दोबारा पूछ लीजिए। सर नहीं पूछना। अब इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब किसी को, जब एबल टू वर्क होते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। जब आप एबल टू वर्क है, विलिंग टू वर्क है, बट आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, दैट इज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम हो, ये इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता है। जब हम टोटल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो इस ओनली इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट को ही हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट और टेम्पररी फेजेस होते हैं, इनको रिमूव किया जा सकता है। तो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जब लोग अपने आप ही काम करने की इच्छा ना करें। मतलब दे आर अनविलिंग टू वर्क इवन दो दे आर एबल टू वर्क, बट दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। अगर अनविलिंग हो जाए तो वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट तब है जो लोग काम करना चाहते हैं और उनके लिए रोजगार ना हो, दैट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ पूछना चाहे पूछ लीजिए। यहाँ पर एक चैप्टर खत्म होता है बेटा। सर आज की रिकॉर्डिंग भेजना।